Hello students, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Students, we have started chapter number 1st, rational numbers, in our last class, and we have completed three questions in our last class. Okay, in that class ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ additive inverse and distributive property ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 20 of July 2020. ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1.1 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 4th ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ multiplicative inverse. In last class we have discussed about additive inverse. So in this class ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ multiplicative inverse ਬਾਰੇ. ਠੀਕ ਆ. ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਨਸਰ ਆਵੇ. ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ 4, ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ. ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ. ਅਗਰ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਦੈਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ. ਫਸਟ ਪਾਰਟ -13. ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ -13 is -1/13. ਐਜ਼ -13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -1/13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 1 ਆਏਗਾ. ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਐਂਡ 13 ਨਾਲ 13 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 13, 1/13, -1/13 ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ. ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. -13/19 ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ -13/19. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? -19/13 ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਹਦਾ. ਠੀਕ ਆ. ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 1/5. ਠੀਕ ਆ. ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 1/5. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5/1 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਵੇਖੋ. ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ. 1 - 5/8 ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -3/7. ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ. -5/8 ਇੰਟੂ -3/7. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 5 3s are 15, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਐਂਡ 8 7s are 56. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? 56/15. ਐਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ. ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣੇ ਆ. ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ. ਠੀਕ ਆ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਿਹੜੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਿਹੜੀ. ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ properties, on those properties. Okay,
सो बेटा ये किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हुई आ, ये किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हुई आ, ठीक आ। तो ये किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हुई आ, इन्हां दे आंसर तुसी लिखोगे। अगर तुहानूं कोई डाउट है ये बारे तो तुसी पुछ लिओ, ठीक आ। ये मैं प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कीती हुई आ, उही आंसर आने इन्हां दे। नैक्सट 6th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर दे विच भी आया सीगा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत भुलेखा खांदे इहदे विच। उन्होंने कहा 6/13 नूं मल्टीप्लाई करो बाय काहदे नाल, रेसीप्रोकल ऑफ दिस, इस टर्म का रेसीप्रोकल करना वा। बच्चे ज़्यादातर इस टर्म का कर देंगे हैं, ठीक आ। वो चीज़ गलत हो जाती है। की करना वा, 6/13 नूं इस टर्म के रेसीप्रोकल दे नाल करना वा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना असी दी रेसीप्रोकल ऑफ -7/16 इज़ की होएगा रेसीप्रोकल। रेसीप्रोकल वर्ड सुनिया ना ऑलरेडी तुसी। गिवन टर्म नूं न्यूमीरेटर नूं डिनोमीनेटर बना देईदा ते डिनोमीनेटर नूं न्यूमीरेटर, मतलब उल्टा देईदी आ, ठीक है। ये आ जाना 16/-7। क्लीयर है। अगर माइनस तुसी उपर भी पा लोगे तो गलत नहीं होएगा तुहाडा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो साडा क्वेश्चन की कहंदा वा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 नूं मल्टीप्लाई काहदे नाल करना वा, इस चीज़ के रेसीप्रोकल नाल। ते रेसीप्रोकल की आ मेरे कोल, ये वाला रेसीप्रोकल आया 16/-7। इहदी कटिंग नहीं होनी, सो इनू मल्टीप्लाई कर लेना वा। ये आ जाना 96, 13 7 91 नाल नैगेटिव का साइन। तुसी ऑलरेडी कॉपी के उपर किया, तुहानूं दूजे मैम ने करवाया। अगर माइनस उपर भी पाया होया ना उन्होंने, दैट्स ओके, ठीक है। वो चीज़ सही हैगी आ, गलत नहीं आ। सो इदां आ जाना वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ये भी दसना कि किहड़ी प्रॉपर्टी आ। सो ये तुसी करोगे कि किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज़ 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वाई और वाई नॉट। बेटा दिस सारे क्वेश्चन जोड़े मैं करवा रही हाँ ना 1 मार्क्स वास्ते इंपॉर्टेंट है, 6 2 मार्क्स वास्ते इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। आ सारे फस्ट चैप्टर दे विचों फस्ट एक्सरसाइज जी आ सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वास्ते वेरी इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। तो फस्ट तो 6th क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स दे विच, ठीक है। सो बेटा ध्यान दे नाल समझो। फिर उन्होंने कहा वा कि 8/9 इस चीज़ का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैगा वा वाई और वाई नॉट। जे हैगा क्यों, जे नहीं आ तो क्यों नहीं, ठीक है। 8th क्वेश्चन फस्ट ऑफ ऑल गिवन स्टेटमेंट हैगी आ -1 × 1/8 मिक्सड फ्रैक्शन आ। इनू मैं सॉल्व करूँगी, करनी आउंदी होएगी सानू आई होप। 8 1 8, 8 + 1 ये आ जाना -9/8, है ना। हुण उन्होंने क्या चैक करो कि 8/9 इहदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैगा वा। देखो मैं की करदी हाँ 8/9 नूं मल्टीप्लाई कर लेनी -9/8 ना। 8 ना 8 कैंसल, 9 ना 9 कैंसल, कितना आ गया -1। सॉरी अगर विजिबल नहीं होया बेटा। 8 ना 8 कैंसल, 9 ना 9 -1। हाँ जी बोलो, जिहड़ा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुंदा वा कि उहदे विच -1 होना चाहिए वा जां +1 होना चाहिए वा। असी हुणे पढ़िया सी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दे विच बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 हुंदी है, ठीक है। पॉजिटिव दा 1 होना चाहिए सी, बट इत्थे की आया वा -1, ठीक है। सो असी तुसीं लिखिया होएगा ऑलरेडी कॉपी के उपर। सो असी इहदा लिख देना वा बेटा। मैं ना प्रॉपर वे दे नाल तुहानूं एक्सप्लेन नहीं मतलब लिख के नहीं दस रही, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड योर कॉपीज़ ऑफ दिस चैप्टर। आई हैव जस्ट मैं तुहानूं सिर्फ समझा रही हाँ, तुहाडी रिविजन आ एक हिसाब नाल इह वाले चैप्टर दी, ठीक है। सो मैं इनू प्रॉपरली नहीं लिख रही। जे प्रॉपर वे दे नाल इनू तुसीं ऑलरेडी लिखिया होया कॉपीज़ उपर, अगर नहीं दैन तुसीं मैनूं दस्सिओ कमेंट दे विच, मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दांगी, ठीक है। सो तुसीं इहदे विच लिखिया होएगा 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 और दिस टर्म बिकॉज इनू मल्टीप्लाई कीते आंसर कितना आउंदा -1, ठीक है। लिखिया होया होएगा, इस करके इहदा आंसर की आ जाना नो।
क्लीयर आ। 9th क्वेश्चन, इज़ 0.3 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। कि 0.3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैगा वा। फस्ट ऑफ ऑल मेरे को स्टेटमेंट हैगी है, मैं मिक्सड फ्रैक्शन सॉल्व करती हाँ। 3 3 9 9 ये आ जाना 10/3। चैक इनू करना ना 0.3 नू, मैं 0.3 नू मल्टीप्लाई कर दी गिवन टर्म के नाल, डेसीमल हटा दा, ये आ जाना 3/10 आ गया 1। सो इट मीनस यस आ जाना, इसका आंसर आ जाना यस। यस 0.3 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस बिकॉज, तुसी फिर बिकॉज करके आ सारी चीज़ सॉल्व की होनी कॉपी ते। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज करके तुसी सारा कुछ सॉल्व किया होना वा। नैक्सट 10th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ਉਹ वाला रैशनल नंबर दसो जिहदा रेसिप्रोकल नहीं हुंदा। सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल हुंदा वा। तुसी 1 नूं लओगे 1/1, 2 लओगे 2/1, 1/2 लओगे उहदा रेसिप्रोकल, 1 लओगे 1/1, 2 लओगे 2 का रेसिप्रोकल की आ जाना 1/2 है ना। 3 लओगे उहदा रेसिप्रोकल आ जाना 1/3। ਉਹ वाला रैशनल नंबर जिहदा रेसिप्रोकल नहीं हुंदा ਉਹ किहड़ा हुंदा? 0। ठीक है, ਜਾਂ इदां भी लिख सकते हैं 0। दी रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर, बी पार्ट हैगा ਉਹ वाले रैशनल नंबर्स ਜਿਹੜੇ अपने रेसिप्रोकल के बराबर ही ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਲੈਣੀ मैं तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1/1 1 ही आ जाना ना। ठीक है, तो दूजी एग्जाम्पल मैं -1 ਲੈਣੀ आ। जे मैं -1 ਨੂੰ मैं इदां लिख सकती, जे मैं इहदा रेसिप्रोकल ਲੈਣੀ आ तो रेसिप्रोकल ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 1/-1, मतलब फिर -1। ठीक है, सो किहड़े दो नंबर्स आ जिन्हां दा रेसिप्रोकल सेम ही आ जाता 1 एंड -1। ठीक है, दी रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू इट्स नैगेटिव। वो वाला रैशनल नंबर जिहदा नैगेटिव भी खुद दे बराबर ही हुंदा। हाँ जी 1 वा कि 1 ते -1, 1 का मैं नैगेटिव करा सेम चीज़ आ? नो। 2 ते -2 सेम आ? नो। सो किहड़ा नंबर वा जिहदा नैगेटिव ते वो नंबर खुद बराबर हुंदे आ? दैट नंबर इज़ 0। ठीक है, 11th का फस्ट पार्ट, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। नो, असी हुणे पढ़िया वा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं हुंदा, डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। दी नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। किहड़े नंबर्स वा वेखो असी उपर पढ़िया 1 एंड -1। -1 रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ माइनस, रेसिप्रोकल की हुंदा वा? चेंज कर देना, उल्टा देनी रकम। ठीक है, ये आ जाना -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 वेयर एक्स नॉट। बेटा आ चीज़ कंडीशन का मतलब पता की हुंदा वा? जदों 1/x रैशनल नंबर आ तो असी पढ़ते ना तो डिनोमीनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 जे हो जाऊगा तो डिफाइंड ही नहीं हुंदा। ठीक है, इस करके आ चीज़ नाल पाउंदे कि x इत्थे 0 नहीं हो सकता। हाँ जी, 1/x का रेसिप्रोकल x/1 या कल्ला x भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट की हुंदी आ? रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। जे कोई पॉजिटिव नंबर आ प्लस का वा तो आंसर भी रेसिप्रोकल भी प्लस ही आएगा ना। प्लस के नंबर का रेसिप्रोकल भी प्लस ही आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आ हैगियां वा 6 ते 3 9 पार्ट्स वा। समझ लो ये 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ तुहाडे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किते वक्रे नहीं। जे तुसी कहोगे ना तुसी कोई बुक लै लोगे जां है ना उहदे उप्परों, नो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुहानूं पूरे चैप्टर चों कितों भी आ सकदा वा, किसी क्वेश्चन दे विच्चों भी कोई चीज़ पुछ सकदे आ तुहानूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेटा ध्यान दे नाल ये चीज़ां करनियां आ। नैक्सट एक्सरसाइज जिहड़ी है रिप्रजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबरस ऑन नंबर लाइन, ये ऑलरेडी तुसी 7th क्लास दे विच भी 9th चैप्टर च कीती सीगी ते हुण मैं तुहानूं दोबारा कल नैक्सट क्लास दे विच इहनूं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो एक चीज़ बेटा होर ना, एक बच्चे ने मैनूं किसी ने क्वेश्चन किया सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बारे। ठीक है, मैं तां नहीं एक्सप्लेन की सी बिकॉज तुसी 6th क्लास तो पढ़ते आ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं तो फिर तो चलो दस दिनी तुहानूं एक बारी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुंदी आ
ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट च बी प्लस सी, इट मीनस कि ए ने बी नाल भी मल्टीप्लाई होना प्लस ए ने सी नाल भी होना। ठीक है, तो उत्थे सानू फस्ट क्वेश्चन दे विच असीं जदों यूज़ कीती सी ना, सानू आ कंडीशन दित्ती सी ते असीं की कीता सी कि इस स्टेटमेंट च भी ए हैगा, इस स्टेटमेंट च भी ए, मैं इहदे तो इस रिजल्ट वल आई सीगी। मैं की कीता सी ए मल्टीप्लाई कॉमन कट लिया सी, विच बचिया सी बी प्लस सी। समझ लगी? इदां करके हुंदी, हो सकदा तुहानूं आ साइड गिवन होवे, तुहानूं आ अपने आपे बनानी पवे, हो सकदा तुहानूं ए गिवन होवे ते तुहानूं वापस इस फॉर्म वल जाना पवे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ नोट कर लियो बेटा। सो स्टूडेंट्स असी 1.1 अज कंप्लीट कर लिया, तो 1.2 असी नैक्सट क्लास दे विच करांगे। आई होप तुहानूं समझ आ गई होएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।